پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے. ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ یہ کہ ہم پاور شیئرنگ پالیٹکس نہیں کرتے، ہم عوامی پالیٹکس کرتے ہیں. عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ عوام کے نام پہ اپنے مفادات کرے. تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں. ایک وضاحت میں کر دوں پیپل پارٹی کے حوالے سے. ایک منٹ جی، پیپل پارٹی کے حوالے سے تمام جو میسیجز تھے، پیغامات وہ خان صاحب کے سامنے رکھے ہیں، اور کہ یہ پوزیشن ہے جس پہ خان صاحب نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ ہم نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت میں پاور شیئرنگ نہیں کر سکتے. تو بات ختم جی مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ میں بھی روڈوں پہ آ رہا ہوں، تو کیا دوبارہ پھر گرفتاری کے کچھ چانسز آپ نے بھی اعلان کر دیا؟ دیکھیں، گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے کسی صورت، یہ پیسفل ہوں گے اور یہ عوام کا آئینی اور قانونی حق ہے. اب جب کہ پیپل ہیو اسپوکن مینڈیٹ آ چکا ہے، اس کا قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اسی کے احترام کے مطابق ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن وہی رزلٹ اناؤنس کرے گا جس کا ووٹ پڑا ہے. پروٹیسٹ کے حوالے سے ایک منٹ سے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. خان صاحب نے 4 باتیں کی ہیں پروٹیسٹ کے حوالے سے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتا دے کہ یہ مینڈیٹ پہ صرف ڈاکہ نہیں پڑا ہے، بلکہ پورے ملک کی پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستان میں ووٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو آنے والے الیکشنز پہ سوالیہ نشان رہے گا. لوگ عوام کے پاس نہیں جائیں گے. فارم 45 اور فارم 47 کے چکر میں اس دفعہ 7ویں نمبر پہ آئے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ووٹ ہے اس کے لیے کوئی اسٹریچر پہ آیا، کوئی ہزاروں میل فاصلہ طے کر کے پاکستان آیا، کوئی آپریشن تھیٹر سے آیا، کوئی ڈائلیسس کا مریض جو ہے وہ اب الیکشن بوتھ میں آیا ہے. تو لہٰذا یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک کرمنل منی لانڈرنگ سینڈیکیٹ، یہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ تھے، اس کو پاکستان پہ امپوز کرنے کے لیے جو پہلے بھی، اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز واحد ذریعہ ہے پاکستان کی فائنینشل سٹیبلٹی کا، اور اوورسیز پاکستانیز قطعاً ڈالر نہیں بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو حکمران ہیں وہ ڈالر چوری کر کے باہر بیچتے ہیں. تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی فائنینشل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے. 28 بلین ڈالر 3 ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں. 1 بلین ڈالر تک ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے. انہوں نے پھر وہی گیسوں کی مد میں، پیٹرول کی مد میں، بجلی کی مد میں پاکستانیوں پہ بم گرانے ہیں. تو لہٰذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے، جب وہ احتجاج کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دیے گئے مینڈیٹ کے امین ضرور ہیں، لیکن آج پاکستان نے ایک دفعہ اٹھنا ہے رول آف لا کے لیے اور دیے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے. انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور دوبارہ 9 مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا پرامن رہے گا، اور پرامن احتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے. خان صاحب کے بیاف میں پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ احتجاج دنیا بھر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا، کیونکہ 80 لگ بھگ سیٹیں چوری کی ہیں اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے یہ سیٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لانڈرنگ کا ہے. اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہے. لہذا بلا خوف و خطر، بغیر کسی اندیشے کو ذہن میں ڈالے، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائیں. ہر پاکستانی اپنے شہر، اپنے دے، اپنے ٹاؤن میں
निकले और तमाम को बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम है। ये लोग जो मैंडेट चोरी कर रहे हैं और चोरी के जरिए चोरों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अगर आज कामयाब होते हैं और पाकिस्तानी किसी भी डर की वजह से या खौफ की वजह से एहतजाज ऐसे मुस्तहकम अंदाज में रिकॉर्ड नहीं कराते हैं, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी अंधेरा है, बुनियादी हकूक की पामाली जो है पाकिस्तानियों का मुकद्दर बनेगी। लिहाजा मैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन और पीटीआई पाकिस्तानियों से दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ कि सैटरडे को दिन 12 बजे पूरे पाकिस्तान में निकलना है। हर एक ने ये सोच के निकलना है कि ये जंग पाकिस्तान के लिए है, हमारी आजादी की जंग है। अगर मैंडेट चोरी होने दिया जाए और आज अगर चोरी होता है, आने वाले 10 इलेक्शनों में चोरी होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत की तदफीन होगी। लिहाजा निकलना भी है इस्तिकामत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, और वादे कर दे अगर आपके अंदर कोई ऐसे अनासिर घुसते हैं जो पत्थर उठाते हैं, खलफशार करते हैं, तो आपने खुद उनको रोकना है। लेकिन अगर हुकाम आप पे तशद्दुद करते हैं, आपने तशद्दुद भी सहना है डंके की चोट पे, और आंखों में आंखें डाल के आपने हर शहर के मेन चौराहों में निकलना है। आपने नारे लगाने हैं कि ये हमसे जमहूरियत चोरी कर रहे हैं, हमसे हमारी आजादी चोरी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, हफ्ते को 12 बजे दिन आपने खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, जमहूर के लिए, दस्तूर के लिए ऐसे निकलना है कि इनकी आंखें इसी तरह कुली की कुली रह जाए, जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट की ताकत से इनके तमाम सियाहत खंडों को सील कर दिया। फरमाइएगा कि एक तो आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं, और इस ताख़ीर की वजह से आप अपने नंबर नहीं शो कर पा रहे, और बार बार ये आपकी तरफ से ववेला किया जा रहा है कि ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं या सारे आपके साथ हैं। सेकेंडली, आपने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला KPK और वज़ीर आला पंजाब के लिए जिन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया, वो सारे के सारे 9 मई में इस वक्त इश्तिहारी हैं। थर्डली, आपकी जानिब से ये कहा गया कि जो हुकूमत आ रही है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि वो 28 अरब डॉलर जो हैं वो 3 माह में देंगे, बजाय सिवाय इसके कि उनके पास पेट्रोलियम और बिजली की प्राइसेस बढ़ाने का ऑप्शन है। अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या रोड मैप है कि आप पेट्रोलियम और बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर ये 28 अरब डॉलर 3 माह में वापस करेंगे? देखिए, आपका कंपोजिट सवाल है, पर मैं इसके जवाब देता हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ताख़ीर की, हम ताख़ीर नहीं करें। किसी भी पार्टी ने भी अभी पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास रूटीन में बुलाया जाता है जबकि उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट है और इवन जो जीते हुए भी हैं उनके साथ MPs भी साथ मौजूद हैं, तो वो ये केसेस में बिजी है। इसकी वजह से हमने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है। तो ये वाला मसला है कि उसको इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वापस बुलाएंगे। और अगर आप इकानमी को बेहतर करने के लिए कह रहे हैं तो आप इकानमी के लिए हमने अपना मंशूर का ऐलान किया था और मंशूर को हमने डिस्प्ले कर लिया। आप अगर उस मंशूर को देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आप देख लेना कि हमारे पास उसका प्रॉपर एक हाल मौजूद है, काफी तफसील के साथ मैंने बोला। जहां तक आप जो कह रहे हैं कि 9 मई का, देखो आप ये बताएं कि ये लोग वही जो हमने नॉमिनेट किए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये क्वालिफाइड थे, इनमें मेजॉरिटी के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, अदालतों ने रिस्टोर करी। आप मुझे सिर्फ एक नाम बताए कि वो अगर हमारा पार्लियामेंट में भी था, अगर वो प्रोविंशियल असेंबली में भी था, वो अगर लोकल गवर्नमेंट में भी था, क्या उस पर 9 मई का समाव कोई ना कोई FIR नहीं है? अगर इसके लिए हम देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान में तो हमें एक कैंडिडेट भी ऐसा नहीं मिलेगा। हम तो इस बात का पहले इजहार कर चुके, ये नहीं है, लेकिन वो जो लोगों को हमने मैंडेट उनके पास है, ये पार्टी को लीड करेंगे, इंशाल्लाह फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे और बेहतरीन कैंडिडेट है और इंशाल्लाह ताला कामयाब करेंगे। एक लाइन और करते हैं, एक इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं। कल 2 बजे मेरियट होटल में इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया को के सामने हम तमाम फॉर्म 45 बमाए उस उम्मीदवार के जिस उम्मीदवार के हक पे डाका डाला गया है, ये हम प्रेजेंटेशन देंगे। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे और तमाम मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से दरखास्त है कि 2 बजे जो है वो मेरियट होटल तशरीफ लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने सोशल मीडिया के
जो वॉरियर थे उनसे इस्तदा है कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा तर फैलाएं। अच्छा खान साहब, आपने जैसे कहा कि अपना एहतजाज की बात है, एहतजाज आप रोडों पे कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन के बाहर करेंगे? देखो वो हर जगह पे करेंगे, पूरे पाकिस्तान में है तो पूरे पाकिस्तान वाले लोग इलेक्शन कमीशन को नहीं आएंगे, वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। जहाँ जहाँ ये हुआ है तो पूरे पाकिस्तान में होगा, हर जगह होगा। सर आपने वजीर आजम के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया, वजीर आजम के लिए गिनती पूरी करने के लिए आपके पास कोई लायामल है? पीपल्स पार्टी के साथ आप दावा कर रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो लायामल क्या होगा? इस नशिस्तों में तो आप वजीर आजम नहीं ला सकते। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 180 सीट्स है, वो गिनती भी बताई थी, नंबर भी बताए थे और फॉर्म 45 भी कल बताएंगे। और इलेक्शन से कमीशन से हमने यही दरख्वास्त किया कि जब फॉर्म 45 बनता है, लोग पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करते हैं, शाम के वक्त सबके सामने वोट काउंट हो जाता है, फॉर्म 45 बनता है, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है, रिटर्निंग अफसर वो फॉर्म 47 और 48 बनाता है। एज सिंपल एज दैट। उसके मुताबिक जो फैसला होगा वो हमें कबूल है और वही हम कहते हैं कि फॉर्म 45 से आप 48 बना ले, कौन विनर है वो अब आपके सामने हम वो फॉर्म दिखाएंगे जो हमारे पास भी है, वो जमात इस्लामी के पास भी है, वो टीएलपी के पास भी है, वो इन लोगों के पास भी है। उसके मुताबिक हम जीते हुए, यही तो रीजन है कि कराची में जमात इस्लामी ने कहा हम ये नहीं लेते, ये सीट हम हार चुके हैं। बाकी भी आपने देखा वो जीते हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा मैंडेट नहीं है, हम नहीं जीते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर पूरे, जिस दिन इलेक्शन होगा हमको नंबर इंशाल्लाह पूरे करके आपको नजर आएंगे। ये बात बताइए कि आप सियासी इस्तेकाम की बात करते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, आवाज नहीं आ रही है। सियासी इस्तेकाम होना चाहिए मुल्क में। मुझे ये बताइए कि 2013 में जब इलेक्शन हुए तो आपकी जमात ने 128 दिन का धरना मारा इस्लामाबाद में, उस वक्त आप सियासी इस्तेकाम रात क्यों नहीं आए? एक बात 2018 के इलेक्शन में जब आपकी हुकूमत आई थी, खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो आप कहा गया सिलेक्टेड कहा गया कि आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब 2024 का जो इलेक्शन है यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि आप इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम नहीं कर रहे, वो आपका राइट है, कानूनी आप बेशक ना करें, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने धरनों का, आपने एहतजाज की भी कॉल दी थी, तो सियासी इस्तेकाम कहाँ पे आएगा? मुझे ये बताएं। देखो सियासी इस्तेकाम के लिए तो यही, देखो हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ 2013 और 18 की बात है तो 2013 में हमने कहा था कि 4 हल्के खोलो और 4 हल्के उस वक्त नहीं खोल रहे थे। अभी हम कह रहे हैं कि रिजल्ट उस तरीके से बनाओ जिस तरीके से फॉर्म 47 बना है, अभी भी नहीं कर रहे हैं। 2018 में और यहाँ के हालात में कितना एक फर्क है। 2018 में कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी लीडरशिप अंदर हो और लोग इलेक्शन जीत चुके हो, किसी भी कोई ऐसी पार्टी है जिससे निशान लिया गया हो? ये तो जमीन आसमान का फर्क है। अब अदम इस्तेकाम खत्म करने के लिए हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मैंडेट चोरी होते हुए भी हम फिर भी कह रहे हैं कि हम पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, हम जाएंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर रहे हैं। देखिए झूठ पे इस्तेकाम नहीं कायम होता। आप अगर झूठ की बुनियाद पर एक हुकूमत कायम करेंगे तो मुस्तहकम हुकूमत नहीं हो सकती। अगर वोटर और आवाम और रियासत का रिश्ता जो है आप उसको तोड़ देते हैं, उस रिश्ते में आप झूठ और फरेब को शामिल कर देते हैं, फिर आप समझते हैं कि इस्तेकाम होगा, मईशत तरक्की करेगी, तो ये खाम ख्याली है। हम इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इंसाफ दो, जो हक है वो हमें दो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। जो लोगों ने वोट डाला है उसको इज्जत दो, उसको मानो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। झूठ से इस्तेकाम नहीं आता। 2013 में 4 हल्के खोले गए 2 साल बाद और 4 हल्कों में फ्रॉड साबित हुआ। आखिरी क्वेश्चन। बैरिस्टर साहब, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ खैबर पख्तूनख्वा में उनके बैनर तले आगे बढ़ने का फैसला हो रहा है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उसकी क्या पेशरफ्त है? नहीं, हम पीटीआईपी के साथ कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा उसके साथ नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू जी, थैंक यू।